ধনৰ লোভত ৰোগীৰ জীৱনৰ লগত হেতালি নাৰ্ছিং হোমৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ ৰোগীক অযথা হেঁচা খুদকৰ্মৰত চিকিৎসকে প্ৰকাশ কৰিলে বিস্ফোৰক তথ্য। চিকিৎসক আৰু চিকিৎসালয় সদায় জীৱনদায়িনী হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে, কিন্তু একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ৰ বিৰুদ্ধে ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি অহাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া। এইবাৰ খুদ চিকিৎসকে উন্মোচন কৰিলে ভয়ংকৰ তথ্য। ধনৰ লালসাত ৰোগীৰ জীৱনৰ লগত খেলা ছেইণ্ট লুকছ হস্পিটেলত। একমাত্ৰ ধন ঘটাৰ স্বাৰ্থতে যে একাংশ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ে সাধাৰণ ৰোগকো জটিল ৰোগ দি ICUত ৰখাৰ উপৰিও ৰোগীৰ অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ মালিকপক্ষই চিকিৎসকক বাধ্য কৰোৱা সন্দৰ্ভত এগৰাকী চিকিৎসকে আজি এখন সংবাদমেলত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখ্য যে ডাক্তৰ প্ৰবীণ শৰ্মা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ BJ মেডিকেল কলেজ আৰু হাৰ্ডিকৰ হস্পিটেলৰ এগৰাকী স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞ। স্নায়ুৰোগৰ চিকিৎসক হিচাপে সুনাম থকা ডাক্তৰ প্ৰবীণ শৰ্মাক অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ ছেইণ্ট লুক হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰোগীৰ স্বাৰ্থত চিকিৎসা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে সপ্তাহত 4 দিন কাম কৰাৰ বাবদ 5 লাখ টকা দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি নিয়োগ কৰে। 2023 চনৰ আগষ্টৰ পৰা স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞ হিচাপে কৰ্মৰত ডাক্তৰ শৰ্মাক সেইটো বছৰে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা 9 লাখ টকা দিব বুলি মৌখিকভাৱে অৱগত কৰে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই। ইতিমধ্যে সুন্দৰভাৱে ৰোগী চোৱা-চিতা কৰা কামত নিয়োজিত ডাক্তৰ শৰ্মাক চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই ক্ৰমান্বয়ে ৰোগীক দৰৱ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব বা ICUত ভৰ্তি কৰাবই লাগিব আদি হেঁচা দি মানসিক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। বৃহস্পতিবাৰে বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবত এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰি চিকিৎসক শৰ্মাই সাংবাদিকক জনায় যে এগৰাকী চিকিৎসক হিচাপে ৰোগীক পৰামৰ্শ আৰু দৰৱ পাতি দিয়া বা প্ৰয়োজন হ'লেহে অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়াটো বিবেচনা কৰোঁ যদিও ছেইণ্ট লুকছ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই সেই ধৰণে নচলিব বুলি তেওঁক মানসিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাটো নিয়মত পৰিণত হয়। কৰ্তৃপক্ষৰ হেঁচা মানিব নিবিচৰা ডাক্তৰ শৰ্মাই যোৱা 24 জানুৱাৰীত ছুটী লৈ পুনেলৈ গৈছিল। পুনেৰ পৰা আহি পোৱাৰ পাছত হস্পিটেল চৌহদত থকা আৱাসগৃহৰ তলা ভাঙি কোঠাত থকা তেওঁৰ মূল্যৱান সামগ্ৰীৰ লগতে নগদ 80,000 টকা, সোণৰ চেইন, আঙুঠি আদি হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই লৈ যোৱা বুলিও অভিযোগ কৰে। ইতিমধ্যে ডাক্তৰ শৰ্মাই চাবুৱা থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰি সবিশেষ জনোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰা বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিছে। সংবাদমেলত অভিযোগ কৰি ডাক্তৰ শৰ্মাই কয় যে ছেইণ্ট লুকছ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই চৰকাৰী নীতি নিয়ম নমনাকৈ বহু কাম কৰি আহিছে। ইয়াৰ ভিতৰত হস্পিটেলত নিয়োজিত সৰহসংখ্যক কৰ্মচাৰীক ভাউচাৰৰ জৰিয়তে দৰমহা দিয়া, চিকিৎসালয়খনৰ লেতেৰা বা আৱৰ্জনা জ্বলোৱাৰ বাবে ইনচুলেটৰৰ ব্যৱস্থা নোহোৱা, 4ৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ নাম শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত পঞ্জীয়ন নকৰা, একাংশ নাৰ্ছক কোনো প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈ কামত খটুৱাই থকা আদি। তদুপৰি আটাইতকৈ গুৰুতৰ অভিযোগটোৱে হৈছে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আদিৰ এম্বুলেন্সৰ চালকক প্ৰতিজন ৰোগীক ভৰ্তি কৰোৱাৰ বিনিময়ত নগদ ধন আদায় দিয়া। আনহাতে অৰুণাচল ৰোগীক প্ৰধান লক্ষ্য কৰি লোৱাৰো তেওঁৰ অভিযোগ তুলিছে। উল্লেখ্য যে যদি সঁচাকৈ ৰোগীক চিকিৎসা কৰাৰ নামত এই ধৰণৰ লুণ্ঠন অব্যাহত থাকে তেন্তে ভৱিষ্যতে সকলো ৰোগীৰ পৰিয়ালেই দুৰ্ভোগ ভুগিবলৈ বাধ্য হ'ব। ডাক্তৰ শৰ্মাই আৰু জনায় যে চিকিৎসা আৰু অপাৰেশ্যন আদিৰ বিনিময়ত তেওঁৰ সৈতে হোৱা চুক্তি অনুসৰি এতিয়ালৈকে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই 25 লাখ টকা আদায় দিবলৈ বাকী আছে। मैं न्यूरोसर्जन हूँ और मेरा 25 साल से भी ज़्यादा न्यूरोसर्जरी में अनुभव है। तो अगस्त महीने में मुझे सेंट ल्यूक हॉस्पिटल से कि हमें एक अच्छा न्यूरो ट्रॉमा सेंटर, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर डेवलप करना है रूरल एंड पेरिफेरल एरिया में, इसलिए मुझे बुलाया गया। तो मैंने जब सेंट ल्यूक हॉस्पिटल का हिस्ट्री पढ़ा कि ये 100 साल पुराना हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल है, यहाँ पे काफ़ी कम रेट्स के अंदर पेशेंट का इलाज किया जाता है। बट जब आने के बाद देखा तो ये मिशन हॉस्पिटल मिशन नहीं चला रहा था, चर्च नहीं चला रहा था, और उसको हैंड ओवर कर दिया था मुनिन फुकन और उनके 2 बेटे विकी एंड रिकी फुकन को। और शुरुआत में तो मुझे ठीक लगा, चलो अच्छा अस्पताल है, अच्छा ख्याल रख रहे हैं। मैं पहले 4 दिन ही आने वाला था हफ्ते में, पर वीक 4 डेज, एंड तभी उसी दौरान 2-3 अच्छे ऑपरेशंस हो गए, काफ़ी पेशेंट्स इमरजेंसी में आ गए, OPD में भी पेशेंट्स बढ़ने लग गए, 200-300 पेशेंट हमने 15 दिन में देख लिए थे। तो मैनेजमेंट ने कहा, मुनिन फुकन और विकी एंड रिकी फुकन ने, कि सर आप फुल टाइम आ जाइए। तो ठीक है, फुल टाइम आ जाता हूँ। और जब मैं फुल टाइम आया तो एक एक चीज़ें धीरे धीरे रिवील होने लगी। इन्होंने आज तक मुझे अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया। ऐसा नहीं कि मैंने मांगा नहीं, मेरे पास सारे प्रूफ है कि मैंने उनको रेगुलरली बोलते गए सर मेरा अपॉइंटमेंट, कोई ना कोई बहाना देके उसको टालते गए। सैलरी जो पूरा सैलरी देना चाहिए हर महीने में, वो कहीं ना कहीं आधा आधा करके देते गए। और केवल यही बात नहीं है, केवल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव हुआ, पैसा कम दिया, वो बात नहीं है।
जो पेशेंट्स आए जा रहे थे मिशन हॉस्पिटल के नाम पे, या अभी न्यूरो का अच्छा ट्रीटमेंट होता है इस नाम से, उन पेशेंट लोगों से ज़बरदस्ती ज़्यादा बिल लिया जा रहा था, ज़बरदस्ती उनको आईसीयू में ज़्यादा दिन भर्ती किया जा रहा था, और काफ़ी पेशेंट इलाज से या कंजर्वेटिव मैनेज से ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे जो कुछ पेशेंट थे जिनको बाहर किसी ने ऑपरेशन के लिए बोला था और वो आए और वो दवा से ठीक हो गए, तो मैनेजमेंट खुश होने के बजाय मेरे ऊपर प्रेशर डालने लग गया कि आप ऐसे ही सब दवा से पेशेंट ठीक करते रहोगे तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन कहाँ से होंगे, ऑपरेशन नहीं होंगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। बोला सर, मैं रेवेन्यू जमा करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए मेरे 25 साल का अनुभव इस्तेमाल नहीं करूँगा। आज तक मेरे नाम पे एक भी ऐसा चीज़ नहीं है कि मैंने अनइंडिकेटेड या गलत ऑपरेशन किया। हाँ, ऑपरेशन अगर पेशेंट को फायदेमंद है, पेशेंट को रिजल्ट देगा तो ही करना, नहीं होता तो मैं सीधा बोल देता हूँ भाई साहब, दूसरा न्यूरोसर्जन अगर कोई करना चाहता है तो आप उधर लेके जाइए। ये प्रेशर कि आप दवा ज़्यादा लिखो, आप ऑपरेशन ज़्यादा करो, ये दिनों दिन बढ़ते गया और बोलने लगे कि अभी अगर तुम ज़्यादा ऑपरेशन करोगे और दवा ज़्यादा लिखोगे तो ही हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, तो ही हम आपका बचा हुआ जो मेरा 20-25 लाख रुपया वो धीरे धीरे करके रिलीज करेंगे। ये सब इस पॉइंट तक आ गए कि असहनीय हो गया। मैं 24 जनवरी को पूना गया, मेरे होम टाउन, और 6 दिन बाद वापस लौटा। वापस लौटने तक इन्होंने मेरे कॉटेज का ताला तोड़ दिया, कॉटेज का ताला तोड़ के अंदर का सामान तैर बैर कर दिया, मेरी वैल्यूएबल चीज़ें गायब हो गई। मैंने उसका एफआईआर पुलिस स्टेशन में किया। और बात केवल यहाँ नहीं रुकती है, बात इसके साथ आती है कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। कोई अस्पताल अगर आप बड़े पैमाने पे चला रहे हो तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना होगा। इन लोगों ने दनादन गवर्नमेंट के रूल्स तोड़े जा रहे। बायोमेडिकल वेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो नियम है, तो मैं जब तक था अगस्त महीने से लेके तो फरवरी 1 तारीख तक सारा कचरा अस्पताल के कैंपस में जलाया जाता था। उसमें आईवी लाइन के बॉटल्स, कैनुला, सिरिंजेस, नीडल्स, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए खून से लथपथ जो गॉज पीसेस, मॉप्स, ये सारा, और इसके वीडियोस भी और फोटोग्राफ्स भी मैंने आपके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के पास में दिया हुआ है। अच्छा, ये हुआ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। दूसरा है लेबर लॉ। आपको सबको मालूम है, अगर आपके पास एक इंडस्ट्री है या ऑफिस है या आपके पास हॉस्पिटल है, तो जो जो लोगों का सैलरी 15,000 से कम है, इन सारे लोगों को श्रम विभाग से जोड़ा जाता है। इन सारों का ईएसआईसी कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, इनको फैसिलिटीज दी जाती है, मिनिमम डेली वेजेस के हिसाब से इनको सैलरी दिया जाता है। ये कुछ भी नहीं किया जा रहा है। 3,000, 4,000, 4,500 रुपया, वो भी कैश में सैलरी देना हाथ में, ये रैंपटली चल रहा है। एक भी बंदा आज तक लेबर ऑफिस के साथ उनका रजिस्टर्ड नहीं है। तीसरी बात, इस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर जो है उसमें भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स दिए हुए हैं कि मेडिकल एयर कंप्रेसर एंड पाइपलाइन रहना चाहिए, जो ऑटोक्लेव होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसका हर ड्रम बराबर ऑटोक्लेव हुआ क्या नहीं, इसका सिग्नल दिखाने वाले कुछ सिग्नल लॉक जैसी चीज़ें रहती है, उसको बराबर कलर चेंज हुआ क्या नहीं, येलो से पूरा ब्लैक हुआ क्या नहीं, और उसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। ओटी कितनी बार फ्यूमिगेट हुआ, कैसे फ्यूमिगेट हुआ, इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ फॉलो नहीं की जा रही है। जस्ट ये चबुआ है, इधर ऐसा ही होता है, हम जो बोलेंगे वो करेगा, हम जो बोलते हैं वही होता है। इस गुरमी के अंदर सारा काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें देख के मुझे लगा, और इनको ये चीजें बार बार बताई गई कि सर आप ऐसा मत कीजिए। इस अस्पताल की एक परंपरा है, ये मिशन हॉस्पिटल है, यहाँ गरीब लोग उम्मीद से और भरोसे से आते हैं कि कम पैसे में हमारा अच्छा इलाज होगा। हम अगर इलाज अच्छा नहीं करेंगे, हम उनसे पैसा अगर ज्यादा लेंगे, तो धीरे धीरे हमारा नाम खराब हो जाएगा, अस्पताल का भी नाम खराब होगा और हॉस्पिटल का भी नाम खराब होगा। बट उन्होंने कभी एक बात नहीं सुनी। डॉक्टर हो या पेशेंट हो, इन सब लोगों को इन्होंने हरदम सेकेंडरी समझा और सिर्फ हॉस्पिटल का बेनिफिट, प्रॉफिट कैसे होगा, इस चीज को प्रायोरिटी, पूरा एक मिशन के कॉन्सेप्ट से लेके तो उसका व्यापारीकरण, उसका बाजारूकरण इन्होंने इस अस्पताल के माध्यम से किया।
लाया गया था, मतलब हाँ। उनसे ज्वाइन किया गया था, तो हाँ। उस टाइम आपको आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया नहीं किया था क्या? ये एक्चुअली इन्होंने पहले जो 4 days इन अ वीक बोला था, स्टैम्प पेपर के ऊपर इन्होंने सारे जो म्यूचुअल हम दोनों के लिए टर्म्स कंडीशंस थे वो लिखवाए। और मैं कल सुबह 8 बजे मेरा फ्लाइट था, तो रात को 9 बजे बोला सर आपका एग्रीमेंट रेडी है, साइन कर लेते। तो स्टैम्प पेपर के ऊपर वो एग्रीमेंट के ऊपर मेरा साइन लिया सारे पेपर्स के ऊपर, और मुझे बोला कि सर अभी इसको नोटराइज करना होगा, तो आप जा ही रहे हो, 4 दिन हो गए, आप जब अगली बार आओगे तो हम आपको ये हैंड ओवर कर देंगे। अब इतना तो इंसानियत और भरोसा रखना पड़ेगा कि इतने बड़े अस्पताल ने बुलाया है, रहने के लिए दिया है, आने जाने का टिकट करवाया है और एग्रीमेंट भी करवाया, उसको एफिडेविट भी करवा रहे हैं, तो शायद अभी वो नोटराइजेशन के लिए टाइम लगेगा। और जब मैं वापस आया तो कोई ना कोई बहाने से कि सर अभी तो आप ना फुल टाइम आ जाइए, इतना काम है न्यूरो का, 3 दिन हम क्या करेंगे, पेशेंट आएंगे तो मैंने भी सोचा आखिर में पुणे में भी तो मैं पेशेंट ही देख रहा हूँ, यहाँ भी तो डॉक्टर लोगों को काम क्या है कि कहीं भी जाओ तो पेशेंट देखना है और पेशेंट का इलाज करना है, जगह का नाम एक सेकेंडरी होता है। तो मैं आ गया, तो बोले पुराने एग्रीमेंट का क्या करना है, नया एग्रीमेंट बनाएंगे। हमारा कभी असिस्टेंट नहीं है, कभी लॉयर छुट्टी पे गया, ये बहाने बताते बताते पूरा सितंबर निकाल दिया। और अक्टूबर से रेगुलरली उनके साथ हर 10वें दिन लड़ाई हो रही है, सर मेरा सैलरी का पेंडिंग पैसा दे दो, मेरा एग्रीमेंट लेटर दे दो। मेरे पास पूरा व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन मैंने जो उनके साथ अक्टूबर महीने से किया वो सारा है, उसके सारों के स्क्रीनशॉट मैंने इनके साथ शेयर किए हुए हैं। ऐसे नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि पेशेंट से ज़्यादा बिल लिया जा रहा है। पेशेंट उम्मीद करके आता है कि मिशन हॉस्पिटल है, कम खर्चे में होगा, और बहुत बार जैसे मेरे जैसे डॉक्टर पे तो प्रेशर किया गया, मैं बाकी के डॉक्टर लोगों का नहीं बोल सकता हूं, बट काफ़ी फोर्स किया जाता है कि अरे आप ऑपरेशन ज़्यादा करो, आप ऑपरेशन ज़्यादा करो, आप दवा ज़्यादा लिखो, आप इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा लिखो। इस तरह का एक मेंटल टॉर्चर या इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि अस्पताल में पैसा नहीं आएगा तो हम आपको पैसा कहाँ से देंगे। वो बिजनेस ही हो गया। हाँ। और जो आपको आपने बोला कि आपको ऑपरेशन भी ज्यादा करने के लिए जो कहते हैं मेडिसिन से ठीक मत कीजिए, ये तो डायरेक्टली मुनीन फुकन और पिताजी के देखते देखते रिकी फुकन ये बोलते हैं। बिकी तो अभी फिलहाल तेजपुर में फाइनल ईयर में मेडिकल स्टूडेंट है, तो वो तो ज़्यादा संपर्क में नहीं है। ये बट कौन है दोनों जन का? मुनीन फुकन ये और रिकी फुकन, मुनीन फुकन पिताजी है रिकी फुकन के, वो बेटा है, बाप बेटे हैं। हॉस्पिटल चलाते हो? ये हॉस्पिटल चलाते हैं। ये मिशन हॉस्पिटल बद्रीनाथ टी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया 2 से 3 साल पहले, मुझे पूरा एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं मालूम है। और ये बद्रीनाथ टी कंपनी जो है ये लोग ओन करते हैं, और हॉस्पिटल चलाने के अंदर जब ये पेपर वर्क वगैरह करते हैं उसमें रिकी फुकन और बिकी फुकन का नाम आता है। अपनी की विषय से अब आप क्या मतलब मांग कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको? नहीं, मेरा इतना ही कहना, देखो मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस माध्यम से मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा या मुझे मेरा 20-25 लाख का नुकसान हुआ मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि अभी लोगों में ये अवेयरनेस आए कि कोई भी अस्पताल में जा रहे हैं तो वो अस्पताल सरकारी नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, उसका रेट लिस्ट किधर है, वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा तो नहीं ले रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा दिन पेशेंट को आईसीयू में तो नहीं रख रहा है। एक जानकारी लोगों को आनी थी कि चबुआ जैसे छोटे जगह पे एक मिशन हॉस्पिटल के नाम पे ये धोखाधड़ी हो रही है। तो हम अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो आगे चल के इसका तकलीफ जो भी पेशेंट जाएगा गलत हॉस्पिटल में उसको भुगतना पड़ेगा। मैं पुणे में था, पुणे में ससुरा हॉस्पिटल बोल के एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज है, बीजे मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मैं ऑनररी प्रोफेसर था। और एक हर्डिकर हॉस्पिटल बोल के है जो वेरी रिनाउंड 100 ईयर ओल्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी का डिपार्टमेंट देखता था। आप उसके स्पेशलिस्ट? मैं ब्रेन और स्पाइन सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ। किसी हायर अथॉरिटी या जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था, मैं रेगुलर मैसेज जो मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस में भी आपको दिखेगा उनको कि आप एक सिस्टम से काम करो, आप मेडिकल एयर और कंप्रेसर पाइपलाइन ये लगाओ, पेशेंट के लिए एक ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल का सिस्टम बनाओ, पूरा रेट लिस्ट तुम डिस्प्ले करो, ये मैंने उनको बार बार बोला बिकॉज आई वॉज वर्किंग देयर। तो मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास नहीं जाते हुए उनको बताने की कोशिश किया, मेरे जो कलीग्स हैं उनको सबको बताया मैंने, बट सब लोग ये बोलते थे कि भाई ये मैनेज कर लेते हैं, आप इसमें क्यों दखल अंदाजी दे रहे हो, ये इनका काम है, ये जाने ये करेंगे अपना आप।
तो एवरीबडी वॉज ऑन द बैक से. तो फाइनली व्हेन थिंग्स स्टार्टेड कि ही स्टार्टेड एलिगेटिंग मी कि मेरा डिग्री बोगस है, मेरा सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है, और वो मेरे जब 24 तारीख को मैं निकल गया तो स्टाफ के ऊपर प्रेशराइज करने लग गए कि डॉक्टर शर्मा के खिलाफ गवाही दो कि आप लोगों के साथ में मिसबिहेव किया है, आप लोगों को परेशान किया है. जब मेरा एफआईआर दाखिल हुआ तो इन लोगों ने बहुत कोशिश की मेरे खिलाफ किसी का स्टेटमेंट आ जाए, किसी का कुछ आ जाए, बट मैंने किसी के साथ कुछ किया ही नहीं था, तो लोगों ने झूठ बोलने से मना कर दिया. तो आप केस दिया है ना? हाँ, एफआईआर कहाँ पर लॉन्च? मैंने चबुआ पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कब किया है, वो? और ये मैंने 4 तारीख को लॉन्च किया है. 4 फरवरी। हाँ, और दूसरा इन्होंने आज तक जो पैसे दिए, और एक बहुत बड़ा जो और अफरा तफरी का कारण है कि मैंने पहला बिजनेसमैन देखा है जो व्हाइट का ब्लैक करता है. मतलब हॉस्पिटल में जो कैश में पैसा आता है वो डॉक्टर लोगों को वाउचर के ऊपर लाखों रुपए वाउचर पे दे रहा है. मैंने 15 वाउचर का फोटो भेजा हुआ है, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे वाउचर वो वाउचर के ऊपर पैसे देके उसका रिकॉर्ड रखता है. सारे स्टाफ को कैश में पैसा देता है. 90% डॉक्टर लोगों को कैश में देता है. ये सीधा सीधा इनकम टैक्स और जीएसटी के नियमों का उल्लंघन है, और कोई अगर इसके खिलाफ बात नहीं करेगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा. 2 बार बैंक वालों ने इनका अकाउंट सील कर दिया है क्योंकि इन्होंने बैंक से जो लोन लिया है उसका पेमेंट नहीं किया, ये दिखा के कि बिजनेस नहीं हो रहा है. क्योंकि ये जो पैसा कैश काउंटर पे आ रहा है ये इसको रिकॉर्ड में नहीं दिखाते हुए इसको कैश में ही खर्चा कर देते. बैंक को पता ही नहीं चलता कितना टर्नओवर हुआ, कितना रोज का पैसा आया. ডিব্ৰুগড় পৰা আতিকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, আছাম ফ্ৰণ্ট.